we're sorry to close this session in this way. हमें अफसोस है कि इस सभा को अभी हम जल्दी बंद कर रहे हैं. We'll go, because we have to keep up the schedule and we give for the GA2. So we'll give the enough space. We have got another 2 days. And whenever the worship session comes, really, I could feel a fresh fire in your heart. क्योंकि अभी हमें अगला कार्यक्रम में जाना है, सम्मुख क्रिया दूसरे में जाने वाले हैं और भी 2 दिन बाकी है और हम आराधना करने के लिए पर्याप्त समय देंगे. जब कभी हम आराधना करते हैं मैं परमेश्वर के सम्मुख को बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर पाता हूँ. Let your heart open for God. परमेश्वर के लिए आपका हृदय खुलना चाहिए. And then God will pour out the heaven as we sang in this morning. Let heaven and glory fill your heart. फिर परमेश्वर स्वर्ग को आपके हृदय में भेज देगा. जिस प्रकार सुबह के समय हमने गीत में गाया कि परमेश्वर की स्वर्ग उतर कर आया और महिमा मेरे हृदय में भर गया. One man of God says like this. एक परमेश्वर के जन ऐसा A man of God says, एक परमेश्वर के जन ऐसा कहता है, expect a great thing from God and do for God great things. परमेश्वर के लिए अब बड़े बड़े कामों को अब अपेक्षा करना चाहिए और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करना भी चाहिए. So I believe throughout India, the revival going to break through in Nagpur. इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि नागपुर में से पूरे भारत देश में एक संजीवन जाने वाला है. Praise be to God. All the thing till now, God had moving with the Spirit and did and quickened us in this morning. Let's be praise God. अभी तक परमेश्वर हमारे बीच में आया और उसने हमें आत्मा से भरा, हमको जिलाया. इसे परमेश्वर की तारीफ करेंगे. Amen. We praise you God. 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 Hallelujah. Jesus. Father Lord, thank you Jesus. We praise you. We praise you. We praise you. Praise you. Praise you God. Thank you. Be seated. कृपया बैठ जाएं. Yesterday, कल we saw GA1, that is where the things gone wrong. कल हमने पहले सम्मुख क्रिया को देखा कि कहाँ सब कुछ गलत हुआ. Finally, we able to find out through that story, bats, the reason for the killing of the bat, eliminating the bats, the reason for the unfruitfulness. अंत में हमने ये समझ लिया कि फल नहीं आने का कारण था कि चमगादड़ को पूरा नाश कर दिया था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And spiritually we able to understand it's our plague within our heart. It's a reason for all the calamities that is taking place in this world. और आत्मिक तौर से हमने ये समझ लिया कि पूरे इस विश्व में होने वाले सब प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उसका कारण हमारा हृदय का महामारी है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. It is because of the mahamari of the heart, all the things are happening around. हमारे हृदय की महामारी के कारण ही बाहर सब कुछ हो रहा है. It is our backsliding we saw. हमने देखा कि हमारा पीछे हटी हुई अवस्था है. By that study we able to surrender our lives to God, understand our fault and be yielded yesterday. और कल के दिन में उस अध्ययन के द्वारा हमने हमारी गलतियों को समझ लिया था. हमने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण किया था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And we saw the little knowledge about the digital detoxification. और हमने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में भी कुछ सुना. Even if on this morning pastor say even this section also you slightly go through glance of it because new youths had come. आज सुबह के समय में भी पास्टर जी ने कहा कि कल हमने जो सीखा था उसको दोबारा थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि नए नए जवान लोग आए हैं. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. We have got only just 1.5 hour for the story and for the study. हमारे पास केवल 1.5 घंटा ही है कहानी के लिए भी, अध्ययन के लिए भी. Like yesterday I cannot disturb my assistant center pastor take my time. जिस प्रकार कल मैंने किया ऐसे आज भी मैं नहीं कर सकता, उनके समय को मैं नहीं ले सकता. So I wanted to go through quickly, teach you the thing which is with the help of the Holy Spirit, the things which is put in my heart, I want to share. So I requested your undivided attention for this. इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मेरे हृदय में जो भी बातें डाली गई हैं, उन सारी बातों को बहुत ही जल्दी से आपको सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ. इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप विचलित हुए बिना मेरे पूरे ध्यान मेरी ओर दें. I think this girls are little attention in this morning. मुझे लगता है कि सुबह के समय में हमारे गर्ल्स अच्छे से सुन रहे हैं. No, sorry, some people are missing it seems. शायद कुछ गर्ल्स गायब हैं.
I don't know if it is volunteers, you can check and bring back. वॉलंटियर्स आप ढूंढ के उनको लेकर आ सकते हैं. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. For the, I'll take a 3 or 4, 5 minutes to explain again the detoxification. कल हमने जो सीखा था उसके बारे में सिखाने के लिए 5 मिनट और Because लूंगा. it's a very important, challengeable topic for the church today, church leaders and pastors and the psychologists and for the medical doctors. क्योंकि आज की कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए और मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत ही एक मुख्य विषय है. The generation with the age 1 to 28, it calls I generation. आज के पीढ़ी में 1 साल से लेकर 28 साल के लोगों को हम हाई जनरेशन करके बोलते हैं. They are digital native. वे डिजिटल नेटिव्स या नागरिक हैं. It is means they are mostly youths of this world. They are addicted to the internet. उसका अर्थ है कि वे सब इस संसार के जवान हैं जो इंटरनेट की लत में पड़े हुए हैं. Thereby, इसलिए but I'm going to go deeply. मैं गहराई से नहीं जाऊंगा. So what happens spiritually if a youth, girl or boy, if you handle that smartphone, digital gadget, in a wrong way? आत्मिक तौर से देखने से यदि एक जवान लड़का या लड़की डिजिटल स्मार्टफोन को उसका गलत उपयोग करने से what will happen? क्या होगा? It will lead to a sickness called digital addiction syndrome. डिजिटल एडिक्शन सिंड्रोम नामक एक बीमारी उनको आ जाती है. Yeah, praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. This many researchers, they are gone deeply research into this internet. बहुत सारे खोजकर्ता ने इस इंटरनेट के बारे में गहराई से रिसर्च किया है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. They come out with this different statement. और उन्होंने बहुत सारे वाक्य को बताया है. What the one author says. एक लेखक ऐसा कहता है. It's internet. It is called a tsunami digital invasion swept our society. वो कहते हैं कि इंटरनेट बोलने से एक डिजिटल सुनामी के जैसे है जिसने हमारे समाज को पूरी तरीके से धो दिया है. Digital tsunami. डिजिटल सुनामी है. I faced literal tsunami. मैंने शारीरिक अक्षरिक सुनामी को मैंने सामना किया है. Within 10 minutes, lakhs of the people, the waves are swept. 10 मिनट के अंदर लाखों लोगों को लहरें ने खींच के समुद्र के अंदर ले गया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. There is a Bible verse for it also. उसके लिए एक बाइबल में से वचन भी है. I believe if anybody can help me. Psalms 32. भजन 32 में है. The godly shall pray in the time of God they found. But the waves, the flood will come upon them, and the flood never come nigh unto them. Please read. 6वां वचन. भजन 32 का 32 and verse 6. Psalms. भजन 32 का 6. नीचे down. और आगे पढ़ो. अरे बाबा थोड़ा स्पीकर में पढ़ो ना. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Everyone godly pray unto the time when God may is found. हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है. Surely in the time of the floods of the great water, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, they shall not come nigh unto him. वो उनके पास न पहुंचेगी. You know, the sin like a roaring wave, tsunami wave is swept into our society. The most dangerous thing is it has crept into the church also. सुनामी की लहर के समान पाप जो है बहुत ही एक भयानक लहर के समान हमारे कलीसिया के अंदर भी आ चुका है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. It come into touches the heart of even the children of God. परमेश्वर के बच्चों के हृदय को छूने के वो आता है. See, it's compared. How many years back the prophecies told about I believe I took this verse in such a way. देखिए कितने साल पहले इस वचन को भविष्यवाणी के रूप में लिखा है. मैं इस वचन को मैंने ऐसा लिया. Surely floods of great water.
निश्चय जल की बड़ी बाढ़ they shall come. वे आएंगे. That is called, so many sites, so many internets, games, flooded the society today. बहुत सारे इंटरनेट के वेबसाइट्स और गेम्स जो हैं आज समाज में एक बाढ़ के समान आ चुकी हैं. Praise be to God. परमेश्वर के साथ. Our God is infinite. हमारे परमेश्वर अनंत परमेश्वर His है. knowledge is infinite. उसका ज्ञान भी अनंत He है. loved us with an everlasting love. उसने हमको एक अनंत प्रेम से प्रेम किया है. What the Antichrist says, लेकिन मसीह विरोधी क्या कहता है? he gives an alternate for this. वो हमारे लिए एक विकल्प देता है. ऐसा भी है, उसका अंदर भी infinite है. उसके अंदर भी ऐसा है. You can go and go and go and go deep. वो आप उसमें गहराई में जा सकते हैं. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Yes, so this is like a tsunami. Waves is going to already swept our society. सुनामी की लहरों के समय के समान ये हमारे समाज में आ चुका है. Sorry, what is the subject? I cannot take too much time. मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता. हमारा विषय क्या है? You quickly sharp your mind and take it part in the session. Let the blood of the Jesus eliminate, the detoxification work to be done from the blood of Jesus. बहुत ही जल्दी से यीशु मसीह का जो लहू है हमारे अंदर जो भी वो जहरीला पदार्थ है उसको निकालना चाहिए. We are going to eat that thing. हम उस चीज से हम नफरत करने Which वाले of हैं. the area of our life, our mind and the heart that is damaged by this addiction or internet problem or gaming, this is poisonous, and to be eliminated by the blood of Jesus. हमारे जीवन के जिस क्षेत्र में हमारे हृदय के मन के जिस भाग में ये इंटरनेट ये गेमिंग ने उसको पूरा जहरीला किया है उसको हम नफरत करना चाहिए. उसको हम निकालना चाहिए. Why we speak often this so seriously? क्यों हम इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से बार-बार बोल रहे हैं? And people are speaking, so devil is so cunning, क्योंकि शैतान बहुत ही so subtle. बहुत ही दूरत है. When we are young, we used to go to one cinema in the cinema theater, one cinema. जब हम लोग छोटे थे सिनेमा थिएटर में एक सिनेमा देखने के लिए जाते थे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Now the devil have squeezed everything. अभी शैतान ने ऐसा किया है कि 7 into 24. 7 गुना 24 hours you can keep that what you call the devilish designed what you call that instrument, the fruit which knows the good and evil, in our pocket, in our bag. पूरे दिन भर आप उस यंत्र को आपके जेब के अंदर रख सकते हैं जो शैतान के द्वारा बहुत ही चतुराई से चालाकी से डिजाइन किया गया है और वो और कुछ भी नहीं है भलाई और बुराई जानने का उस फल के समान है. Another man says, एक और परमेश्वर ने ऐसा कहता है, it is slowly crept into the society. बहुत ही धीरे-धीरे समाज के अंदर घुस चुका है. It is not like a nuclear explosion. एक न्यूक्लियर विस्फोट के समान है. The invasion of the digital into the society is not an explosion. ये जो है एक एक्सप्लोजन के समान है. But it slowly, silently destroys the youth. ये अचानक से ऐसा विस्फोटक नहीं हो जाता है लेकिन धीरे-धीरे करके सारे जवानों को नाश करता है. We can call it as a slow poisoning. इसको हम एक स्लो पॉइजन या धीरे-धीरे आने वाले जहर ऐसा कह सकते हैं. So from in the secret part of the spiritually, see at the back of all these gadgets and apps, and we are tempted to use, or some may be using it. There is a power of the darkness, Antichrist. What is the idea behind the Antichrist? इसलिए इसका गुप्त भेद क्या है? हम देखते हैं कि ये जो भी गैजेट्स और यंत्र हम इस्तेमाल करते हैं इसके पीछे शैतान का उसका उद्देश्य क्या है? Make the society godlessness. समाज को परमेश्वर या ईश्वर रहित बनाना. एक साइंटिस्ट says, एक वैज्ञानिक ने ऐसा कहा. Who came out of the Google industry. वो गूगल में पहले काम करता था, उससे बाहर आ चुका था. He able to understand the devilishness in the इंटरनेट में क्या क्या शैतानी काम है करके वो समझ चुका था. He's a sincere man. He came out of that job. वो एक सच्चा मनुष्य था इसलिए उस नौकरी को छोड़ के आ गया. He opened an NGO. He joined in an NGO. उसने एक NGO में वो जुड़ गया. He wrote many things, but one thing I tell you. उसने बहुत सारी बातों को लिखा, उसमें से एक बात बताता हूँ. He prepared to engage the mind of the people. शैतान ने ऐसा किया कि लोगों We designs the apps and the gadgets. वो कहता है कि जब हम ऐसे apps और gadgets को बनाते हैं, not to edify the people, young, जवान लोगों के लिए एक उन्नति देने के लिए हम नहीं करते. grabs the, squeeze the, make their mind attentive.
उनके मन को engaged, always engaged in it. उनके मन को हमेशा व्यस्त रखने के लिए, इसमें फंसा हुआ रखने के लिए हम ऐसा कोशिश करते हैं। See how dangerous. देखिए कितना भयानक है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। What the Pharaoh says? फिर उन्होंने क्या कहा था? They are free. वे लोग बहुत ही, That's why they wanted to go and worship. उनको बहुत समय है इसलिए आराधना करने के लिए जाने को चाहते हैं। काम को बढ़ा दो. इसलिए उनको काम को बढ़ा दो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So in the form of convenient technology, what happens? No, it's like a drug addiction had come into the society. My question today, where my brothers and sister, young brothers and sister today, सुविधाजनक तकनीकी के रूप में ये जो इंटरनेट है एक नशे के रूप में भी समाज के अंदर आ गया है। प्रिय भाई बहन, मेरा सवाल यह है, after this study yesterday we met one young boy in this ground. कल इस अध्ययन के बाद हमने एक मैदान में एक जवान लड़के से मुलाकात किया। I was casually talking to him. मैं उससे ऐसे बात कर रहा था। Brother, as you said, after my internet addiction, I'm not able to concentrate in my studies. तब उस जवान ने ऐसे कहा, ब्रदर जैसे आपने कहा था, मैं इस इंटरनेट की लत में आने के बाद ठीक तरीके से पढ़ाई में मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। And what do you call attention deficiency disorder? जैसे मैंने कहा उसको कहते हैं attention deficiency disorder. When we are hooked ourselves into this field or gaming or Facebook or Twitter, keep on doing for the pleasure, and we come to the point of the addiction. After that, other joy, we cannot enjoy the other normal joy God had given in our life. जब हम इस इंटरनेट में, इस गेमिंग में, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक में हम ऐसे ही उसमें ही व्यस्त हो जाते, डूब जाते हैं, फिर परमेश्वर ने हमें ठहराया हुआ दूसरे आनंद में उसके अंदर मन लगाने के लिए हमको इच्छा नहीं होती। I'm stop here. इधर ही उसको समाप्त करता हूँ। But anybody, if you feel that yesterday, young boys, I'm very thankful to you. You agreed that itself God loved you. And there will be a repentance. There will be a washing from the blood of Jesus. God is going to deliver you through this meeting going to come follows. कल उस जवान लड़के ने आके मेरे पास ऐसा बताया। So many boys, बहुत सारे बच्चों, they agreed. कल बहुत सारे जवान बच्चों ने हाथ उठाकर ऐसा मान लिया था कि वे सभी लोग इंटरनेट की लत में थे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसा मान लिया, इसलिए आपको पश्चाताप है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धोए जा सकते हैं। We were crying for the anointing just now also. अभी भी हम उस अभिषेक के लिए हम रो रहे थे। So how Jesus, God had blessed Jesus with the anointing. कैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक से आशीष किया था। He ate the unrighteousness, है ना? Wicked, है ना? उसने अधर्म से बैर किया। And loved the righteousness. और उसने धर्म से प्रीति किया। God the Father anointed with the oil of gladness. तो पिता परमेश्वर ने उसको आनंद के तेल से मसा किया। More than the brethren. अपने भाइयों से बढ़कर। अब आपका बगल बैठने वाला brother हो say, if you want to get a mighty anointing. यदि आप चाहते कि आपके आजू बाजू में जो भाई बहन बैठे उनसे बढ़कर अभिषेक चाहिए तो what according to the study what you have to do? इस अध्ययन के अनुसार क्या करना चाहिए? Hate the wickedness. जो भी अधर्म है उसको बैर करना चाहिए। Lord, the thing which I supposed to throw, I hate it, oh God. प्रभु जी जो भी बातों को मुझे फेंक देना है उसको मैं नफरत करता हूँ। And Lord, and I love your righteousness. और प्रभु जी मैं आपकी धार्मिकता से प्रीति रखता हूँ। And from heaven there is an anointing. फिर आसमान से आपके ऊपर एक अभिषेक उतर कर आएगा। So in the anointing section, in the worship session, you confess like this. इसलिए अभिषेक के भाग में, आराधना के भाग में ऐसा इकरार करना चाहिए। Keep the dirty without unrepentant heart. Pour करके बोलना से no use of the Holy Spirit come upon you. यदि पश्चाताप किए बिना एक गंदे हृदय के साथ ऐसे प्रभु जी आत्मा को उंडेल बोलने से पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। Okay, we'll stop. I'll stop here. इधर ही मैं समाप्त करता हूँ। So we'll go for the Chia 2 now. अभी हम दूसरा सम्मुख क्रिया में जाएंगे। This story title, Bend us, O Lord. इस कहानी का शीर्षक है, हे प्रभु हमें मोड़ दे। Yesterday our story goes, we able to understand our life. कल की कहानी के द्वारा हम अपने जीवन को हम समझ चुके थे। We able to understand our fault. हमने हमारी गलतियों को समझ लिया था। Until we break our heart. जब तक हम अपने हृदय को न तोड़ें। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। And God cannot do anything. परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा। Until understand we realize who we are. जब तक हमको ये एहसास नहीं होगा कि हम कौन हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। And that's the title where it goes wrong. और कहाँ गलती हुआ है ऐसा समझना चाहिए। How many girls and boys able to understand and where the wrong and God in your life?
कितने बॉयज और गर्ल्स ने ये समझ लिया था कि कहाँ गलती हुआ था? Those who understand, just lift your hand. जिन लोगों को समझ में आया था हाथ उठाइए. You know? Who were the reason for all the calamities that is going on? संसार में होने वाली सब प्रकार की समस्याओं के लिए कौन कारण है? According to the Bible verse yesterday you studied. बाइबल के वचन के अनुसार कल आपने पढ़ा था. It's me. मैं हूँ. You know, and you have to say it's you. और आप कहना चाहिए मैं हूँ. It's because I am not loving God. I am not returning to the love of God. क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, मैं परमेश्वर की प्यार की ओर में लौट कर नहीं आता. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. That backslidden ये पीछे हटी state अवस्था, of our life. ऐसा एक अवस्था हमारे जीवन का है. That is the reason for the problem around us. वही हमारे आजू बाजू में होने वाले सब समस्याओं का कारण है. Repentance is the womb of the great revival. बहुत बड़ा बेदारी के लिए एक ही कारण है, मन फिराना चाहिए. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Now we'll see what is the story says. आज हम देखेंगे ये कहानी में क्या लिखा है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And the paper we'll give later. बाद में उसका पेपर हम देंगे. It is bend us, O Lord. उसका ये कहता है हमें मोड़ दे हे प्रभु. So before go for the revival that is taking place here. अभी इधर जो बेदारी हो रहा है उसके अंदर प्रवेश करने से पहले to understand this we have to understand little bit the revival which took place in the Wales. इसको समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि वेल्स देश में हुआ एक बेदारी के बारे में. 2 minutes I'll speak and I'll come to the subject here. 2 मिनट उसके बारे में बोलूंगा फिर हम कहानी में आएंगे. What is meant by Wales? वेल्स बोलने से क्या है? Without knowing what is happened in the Wales. वेल्स में क्या हुआ उसको हम जाने बगैर and we cannot understand the story. इस कहानी को हम समझ नहीं पाएंगे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. There's a place called Wales. वेल्स नामक एक जगह है. That a big revival take place only through the youths. और उधर एक बहुत बड़ा बेदारी हुआ था केवल जवानों के द्वारा. Don't think only big pastors can bring the revival. ऐसा नहीं सोचना केवल बड़े बड़े पादरी लोग के द्वारा ही बेदारी हो सकता है. I believe now. मैं अभी विश्वास करता हूँ. It's time to come peak and through the children, through the young brothers and sisters, there going to be a big revival. अभी ऐसे एक समय आप पहुंचा है कि छोटे बच्चों के द्वारा और जवानों के द्वारा बहुत बड़ा बेदारी होने वाला है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. So the young people इसलिए join जवान together, बच्चे pray together. जब वे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, God had put a desire in their heart. परमेश्वर ने उनके हृदय में एक आग्रह को डाला. They keep on praying because the status of this country is so wicked. उस देश का हालत बहुत ही दुष्ट था. Drunkardness, शराबी लोग थे, assassination, लोगों को मारते थे, murder, घात करते थे, looting and theft are going on. दूसरों को लूटना और चोरी करते थे. So people are filled the dance clubs and night clubs where up to midnight. बहुत सारे डांस क्लब और नाइट क्लब था, आधी रात तक लोग उसमें जाते थे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति That is हो. the condition of the England on those days. उन दिनों में इंग्लैंड देश का अवस्था ऐसे ही था. But in some hearts of the young, लेकिन कुछ ऐसे जवान थे जिनका हृदय, the Lord had put a burden. उनकी उस हृदय के अंदर परमेश्वर ने एक बोझ को They डाला था. sincerely began to seek God. सच्चे हृदय से उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा. They repent and confessed. उन्होंने मन फिराया, अंगीकार Waited in the किया, presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में बाट जोया. Big revival came in the Wales. एक बहुत बड़ी बेदारी वेल्स देश में आया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. You know? So one pastor called Campbell. कैम्पल नामक एक पादरी थे. And he's a pastor. वो एक पास्टर थे. He is also a good man. वो भी एक अच्छे मनुष्य थे. He also possesses the Holy Spirit. उनको भी अभिषेक मिला हुआ था. But he is not satisfied to hearing the Wales revival. लेकिन उस वेल्स का जो बेदारी के लिए वो उतना संतुष्ट नहीं थे. How can the young people create a revival? How this is going to continue? He has got a much doubt in his heart. और उनके हृदय में बहुत संदेह था कि कैसे जवानों के द्वारा बेदारी आ सकता है, कैसे ऐसा हो सकता है. So he went to Wales. इसलिए वो वेल्स में गए. And he sat in the service and he saw the miraculous things that is happening over there. और उधर वो जाके आराधना में बैठे और उस वेल्स देश में होने वाले अद्भुत चमत्कार कामों को देखने लगे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. He was surprised. बहुत ही चकित हो गए. He came with a statement. उन्होंने ऐसा एक वाक्य बोला. If I wanted to give you anything for this revival that is happening through the young people in the Wales, I can give all my experience of this spiritual life for them
for the things which I saw there in Wales. यदि वेल्स देश में जवानों के द्वारा होने वाली बेदारी के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूं तो मेरे पूरे जीवन के आत्मिक अनुभव को उनके लिए मैं देने के लिए तैयार हूं. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Such a great things are happening. My eyes saw it. ऐसे मेरे आंखों ने इतने बड़े बड़े चमत्कार के कामों को देखा है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Yes. Another man says. एक और मनुष्य ने ऐसा कहा. In history, इतिहास in में, the church history, कलीसिया के इतिहास में never before and after such a revival broke. इसके पहले और इसके बाद ऐसा बेदारी कभी भी नहीं हुआ था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Because in the Wales revival is so, क्योंकि वेल्स की बेदारी ऐसा था, it is not in one particular church. केवल एक कलीसिया में नहीं हुआ, It is not in a one society. केवल एक समाज में नहीं हुआ, But it in that revival affected the whole nation. ये बेदारी पूरे देश में फैल गया. So he gave the name, that historian gave the name for इसलिए great revival. इसलिए उस इतिहासकार ने ऐसा उसके लिए नाम दिया, एक बहुत बड़ा बेदारी. It's a more great revival than the first Pentecostal. पहले पेंतिकुस्त के पहले दिन में जैसा एक बेदारी हुआ, उससे भी बढ़कर बेदारी करके उन्होंने कहा. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Now we go for the what do you call story. अभी इस कहानी को हम सुनेंगे. The title of the story is Bender's Lord. इस कहानी का शीर्षक है, हे प्रभु हमें मोड़ दे. A small boy, age of 9. एक छोटा सा लड़का था, 9 साल का था. He was born in the 8th June 8th and 1878. वो जून 8 तारीख सन 1878 साल में पैदा हुआ था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. He is not a rich. He is not from the rich family. वो एक धनवान परिवार से नहीं था. His father working as a coal mine labor. उसका पिता कोयले की खदान में एक मजदूर थे. And he stays in the coal laborers' quarters. और वो उस मजदूरों के रहने वाले उस जगह में भी वो रहता था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Even now, when the people saw that cottage, अभी भी जब लोग उस झोपड़ी को देखते हैं, people from America, European country, they travel. अमेरिका से, यूरोप से लोग आकर उसको देखने के लिए आते हैं. They kneel down before that small hut. उस छोटी सी झोपड़ी के सामने घुटना टेकते हैं. Lord, once again we need that, oh God, as you did in the days of Evan Robert, do it again. We need, let the heavens open back again. प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इवान रॉबर्ट्स के समय में एक बेदारी को दिया था, ऐसे अभी भी एक बेदारी होने दे, स्वर्ग और आकाश खुलने दे. What happened in the young stage of this Evan Robert? जब इवान रॉबर्ट्स बहुत ही जवान था, तब क्या हुआ था? When he was in the age of 9, his father was dead. Because of he met with an accident and he had died. जब उसका 9 साल हो गया था, उसके पिताजी एक दुर्घटना में मर गए. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. So this fellow Evan Robert had to take the position of his father. इसलिए इवान रॉबर्ट्स to feed the house, he wanted to go to the work in the coal mine. इसलिए घर को चलाने के लिए इवान रॉबर्ट्स को अपने पिता की जगह में उसको रहना पड़ा, और वो अपने जहाँ पिता काम करते थे उस कोयले के खदान में वो भी काम करने के लिए गया. Even is a school, because of this thing he is a school dropout. इस कारण वो स्कूल में भी नहीं जा सका. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. So is not well educated. इसलिए उतना पढ़ा लिखा नहीं था. He had to go in this young stage to the mine and work hard and to come back to the house. अपने बचपन में ही कोयले के खदान में जाके बहुत ही कठिन काम करना था, वापस घर आना था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. But there is a deep desire fall in his heart. Deep desire. एक आग्रह परमेश्वर के दिल में डाला. God had put a deep desire in him. परमेश्वर उसके अंदर एक बहुत बड़ा आग्रह डाला था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. In the young stage itself he used to go for the church. बचपन में ही वो कलीसिया में जाता था. Spend time with the pastor. और उसके पादरी के साथ समय व्यतीत करता था. This was his routine. वो ऐसे ही करता था. But one day his local pastor, एक दिन उसके पादरी ने,
the pastor says William David. His name is a deacon of that Moriah church, the church the Evan Robert attends. इवन रॉबर्ट जाने वाला उनका चर्च मोरिया चैपल उसका नाम था. उधर का पादरी का नाम विलियम डेविस था. At the age of 13 he was converted. He became a repentant Christian. और जब उसका उम्र 13 हो गया तब उसने मन फिराया और वो एक मसीही बन गया. He wanted the deepest move of God. He would need a deeper intimacy with God. उसने चाहा कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को बनाए रखे. So he had a conversation with the father, that pastor. तब उसने अपने पादरी से बात किया. What he said, you know? क्या उसने क्या कहा मालूम है? Even listen what I say. ध्यान से सुनिए. Even the pastor says. उस पादरी ने इवन से ऐसा कहा. You should not miss any meeting. आप किसी भी सभा को आप छोड़ना नहीं चाहिए. Because for Monday there's a meeting, Tuesday meeting, Wednesday Bible study, and Friday meeting, and night meeting, and during the week at Saturday, Sunday complete meeting. You should not miss any meeting. सोमवार से लेकर शनिवार तक हर एक दिन कुछ न कुछ सभाएं हैं. किसी भी सभा को आप छोड़ना नहीं चाहिए. Why? क्यों? Any of the meeting, the Holy Spirit may come and visit you. Suppose if you miss it, and the great loss for you. किसी भी सभा में पवित्र आत्मा आके आपसे मुलाकात कर सकता है. यदि आप उधर उपस्थित नहीं है तो फिर आप उसको खो देंगे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. You know, क्या आप जानते हैं? what happened? You know, क्या आप जानते हैं क्या हुआ? 13 long years that Evan Robert attended all the meetings, 13 not missing one meeting. 13 साल तक 13 लंबे सालों तक इवन रॉबर्ट्स ने हर एक सभा में शामिल हुआ. एक भी सभा को नहीं छोड़ा. After going to the coal mine work, उस कोयले में जाके काम करने खदान में जाके काम करने के बाद वो वापस आता था. सभा में जाता था. After a little sleep, थोड़ा देर विश्राम करने के बाद, and whole night 4 hours, पूरे रात 4 घंटा, 4 years he continued the same thing. 4 साल उसने ऐसे ही किया. Heart was aching for a revival. That touch, heaven should come and touch his people. उसका हृदय एक बेदारी के लिए ऐसे तड़प रहा था. उसका आग्रह ये था कि स्वर्ग आके उसके लोगों को छूना चाहिए. In 1904, सन 1904 में, praise be to God, परमेश्वर की स्तुति हो, this decade is called as the beginning of the 20th century. It's a decade of revival. ये जो है 20वीं शताब्दी था और ये एक बेदारी का शुरुआती समय था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. He had हो. an experience like a Mount Transfiguration experience. उसको इधर एक रूपांतरण पहाड़ के समान एक अनुभव हुआ था. His heart was filled with joy. उसका हृदय आनंद से भरा हुआ था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Every night the God will come to him and speak to him. हर एक रात को परमेश्वर आता था, उसके साथ बात करता था. That will be great joyful experience for him. वो उसके लिए बहुत ही एक आनंद पूर्वक अनुभव था. 4 years God was speaking to him. 4 साल परमेश्वर से ऐसे ही बात करते रहा. 4 hours he was in the church. He was kneeling and praying. 4 घंटा कलीसिया में घुटने टेके प्रार्थना करते रहता था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. When this was happening, जब ऐसा होता था, in the place called ब्लैंच करके एक जगह था. An evangelist called Seth Joshua. उधर सेथ जोशुआ नामक एक सुसमाचारक था. He conducted a special meeting or crusade. उधर उन्होंने एक क्रूसेड या एक विशेष सभा को चलाया. And 20th September this Evan attended that meeting. और 20 सितंबर को इवन रॉबर्ट्स भी उस सभा में शामिल हुए. Along with so many young people. बहुत सारे जवानों के साथ. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. It's a small company. छोटे से झुंड था. The meeting was started by 7 o'clock. 7 बजे वो सभा शुरू हुआ. They all moved deeply. They are carving for God and praise and praying. सभी लोग बहुत ही गहराई से आग्रह के साथ परमेश्वर की ओर दुहाई दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे. Even breaking his heart and crying to God. इवन भी अपने दिल को तोड़कर परमेश्वर की ओर दुहाई देकर रो रहा था. As we sang, the Spirit moved upon the water. जैसे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था. A spiritual atmosphere, the small group. छोटे से झुंड के ऊपर एक आत्मिक वातावरण उत्पन्न हुआ. At the time that exaltation, the Seth Joshua, the pastor, used the word. प्रबोधन के समय में उधर का जो पादरी से जोशुआ है, उन्होंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया. That is how we'll take it for the title. Bend us, O Lord. उसी को हमने हमारी कहानी का शीर्षक होके लिया, हे प्रभु हमें मोड़ दे. Bend us, O Lord. हे प्रभु हमें मोड़ दे. Bend us, O Lord. He was crying from the pulpit. वो ऐसे उस मंच से ऐसा बोल रहा था, हे प्रभु हमें मोड़ दे.
And these young fellows are also crying in the spirit of God. और ये सारे जवान बच्चे भी ऐसे आत्मा में भर के वे लोग रो रहे थे. When he heard the sentence, the phrase, "Bend us, O Lord," जब उन्होंने जब इवान ने इस शब्द को सुना, हे प्रभु हमें मोड़ दे. when he writes the history in the coming days, he says, "After that, I don't know what has happened to me." बाद में वो ऐसा लिखता है कि उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. I could feel the Holy Spirit coming and speak to me. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा के मुझसे बात कर रहा था. Even this is what you need. इवान तुझको भी यही जरूरी है. Bend me, Lord. हे प्रभु मुझे मोड़ दे. This is what you need. तुझको भी यही जरूरी है. This man, what that, it's become now, it's become a 25-26 years for him. अभी ये जो जवान है उसका उम्र 24 से 26 साल हो गया था. And then he began to cry, shout loudly. फिर वो ऊंचे आवाज से वो चिल्लाकर पुकार कर रोने लगा. Bend me, Lord, publicly shout. वो ऐसे ही सबके सामने ऐसे रोने लगा, हे प्रभु मुझे मोड़ दे, मुझे मोड़ दे. The Holy Spirit came upon. पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया. Praise to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And Calvary loud filled that meeting hall. और कलवरी का प्रेम उस पूरे जगह में फैल गया. And that message of that night message of the Calvary love about the Jesus' sacrificial death on the cross that had branded in the heart of that Evan Robert. और उस रात के समय संदेश यह था कि कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने कितना कष्ट उठाया और ये जो संदेश है उसके हृदय में ऐसे ही लग गया. The historian says this incident. इतिहासकार कहते हैं कि ये जो घटना है balanced the great meeting. बेनानाज की बड़ी सभा करते कहते हैं. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. First time see that God was moving literally among the young people. क्योंकि पहले बार वे लोग देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर अक्षरिक तौर पर जवानों के ऊपर उतर कर आ रहा था. That is the root of the Wales revival. यही वेल्स के बेदारी का जड़ था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. After this incident's over, इस घटना होने के बाद, at that time he was studying in the Bible college. उस समय वो बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था. But God says no need to study. लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा तू आगे को पढ़ने का जरूरी नहीं You है. go to your own house. तू अपने घर चला जा. खुद का गांव को, it's his own village. अपने गांव चला जा. His village name is Loha. उसका गांव का नाम लोहार था. He went there. उधर गया. And his friend name is Sydney. His friend. उसका एक मित्र था सिडनी. His name is Sydney Ivan. उसका नाम सिडनी इवांस था. So he introduced his friend's house. वो अपने मित्र के घर में गया. In the room where they stay. कमरे में जहाँ रहते हैं उधर गया. He said. उसने कहा. Because that friend was so frightened to see the face of Evan Robert. इवन रॉबर्ट्स का जो मित्र था, इवन के चेहरे को देख के बहुत ही भयभीत हो गया. Because full of the light, his face was filled with the glory. क्योंकि उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था. Hey, something happened for you. What happened for you? तुझे कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है? And he said. तब उसने कहा. God, the Holy Spirit, moving might, and this, the Wales is going to lift us up. परमेश्वर पवित्र आत्मा बहुत ही जोरदार से काम कर रहा है. हमारे पूरा वेल्स देश को वो उठाने वाला है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And began to looking in his eyes and ask his friend. और उसने उसकी आंखों की ओर देखकर उससे अपने मित्र से ऐसा पूछा. Hey, you do believe? क्या तू विश्वास करता है? In this place. इस जगह में. From the Wales. वेल्स देश में the Lord is going to give 1 lakh people, 1 lakh souls. परमेश्वर हमको 1 लाख आत्माओं को देने वाला है. It's unimaginable. It is not a meaningful for that Sydney. उस सिडनी उस दोस्त को ये सोचने के लिए भी वो नहीं हो सका. बहुत ही हैरान की बात थी. But how it is possible? ये कैसा हो सकता है? But the glory that filled his face. लेकिन उसके चेहरे में जो महिमा था. The spiritual atmosphere over there. उस कमरे में जो आत्मिक वातावरण थी. Without doubt he also agreed. Yes, God is going to give. और संदेह के बिना उसने भी कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर देगा. In that village he gone and met that village family's church pastor.
pastor. उस गांव में जो उनके पादरी थे उनसे मुलाकात करने के लिए गए. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति Those हो. people scolded, hey, your college छोड़ के you have left the college and you came here. उनके घर वालों ने उनको डांटा कि क्या पढ़ाई को छोड़कर इधर आ गए आप लोग. No, God said to go here. नहीं, परमेश्वर ने कहा कि इधर जाना है. I wanted to speak to the youth. मैं जवानों से बात करना चाहता हूँ. So he got the permission from the pastor. इसलिए अपने पादरी से उनको अनुमति मिला. After the service is over, और सभा समाप्त होने के elders बाद, meeting is over, एल्डर्स का he प्रार्थना होने के बाद counseled and conduct the youth meeting. उन्होंने उधर एक जवानों का शिविर चलाया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. You know, क्या आप जानते हैं? and nearly 1 lakh people, young people began to come and stream into the church. लगभग 1 लाख जवान लोग उस कलीसिया में आना शुरू कर दिया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. See what a great work God had done through this Evan Robert. देखिए परमेश्वर ने इस इवान रॉबर्ट्स के द्वारा कितना बड़ा बेदारी का काम किया था. So wherever he goes, after that, this is now Wales revival started. इसके बाद वेल्स में बेदारी शुरू हो गया. This is the beginning of the Wales revival. यही वेल्स देश का बेदारी का शुरुआत था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Wherever you goes and conduct the meeting, उसके बाद जहाँ कहीं भी वो जाके सभा चलाता था, like a rain and a flow of young people streaming into the church. बारिश के समान जवान लोग उस कलीसिया में आते रहते The थे. mighty fall down of the Holy Spirit, glory fill their heart. पवित्र आत्मा बहुत ही सामर्थ से उतरता था और उनका हृदय में महिमा भर जाता था. Through everywhere the revival meeting they conducted. और सभी जगह में इन्होंने बेदारी की सभाओं को चलाया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Wherever he goes, he'll say 4 things. जहाँ कहीं वो जाता था वो 4 बातों को बोलता था. That is important for us also. वो हमारे लिए भी मुख्य है. For this meeting is also very important. इस सभा के लिए भी वो मुख्य है. If you want, please note down. चाहिए तो आप उसको लिख के रख It is सकते very हैं. necessary to get the blessing before you are leaving this campus. इस कैंपस को छोड़ के जाने से पहले परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही जरूरी बात है. He repeatedly emphasized these 4 points. बार बार इन 4 बातों को वो दोहराते रहता था. And if any young girl wanted to become a revival in your church, in your local assembly, you can please note down this thing quickly. यदि कोई भी जवान बच्चे लोग चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में आप एक बेदारी का कारण होना है, आशीष का कारण होना है, तो जल्दी से इन 4 बातों को लिख It is very, लीजिए. very, very important. बहुत ही मुख्य बातें हैं. All desire सब लोग revival had to come into my church. सब लोग आग्रह करते हैं कि हमारे कलीसिया के अंदर बेदारी आना चाहिए. Certain things and we have to do. लेकिन हम करने के लिए कुछ बातें हैं. And God will do certain things. फिर परमेश्वर करने वाली कुछ बातें हैं. Without us, He cannot do any revival. हम कुछ नहीं करने से परमेश्वर भी कुछ बेदारी नहीं ला So सकता. God wants vessels to do a revival. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि बेदारी उत्पन्न होने के लिए बर्तन या पात्र चाहिए. To become revival, what will be the 4 tenets, 4 commandments? एक बेदारी होने के लिए 4 मुख्य सिद्धांत क्या है? Confess openly, आप खुलेआम आप इकरार करना चाहिए. fully any unconfessed sin. पूरी रीति से यदि ऐसा कोई पाप है जिसको आपने अभी तक इकरार नहीं किया हो. I think you're able to understand. आपने समझ लिया? You know? Confess आप इकरार करना. any sin in your life. अपने जीवन में यदि ऐसा कोई पाप है तो आपको उसको इकरार करना चाहिए. सेवक नहीं देखा, सिस्टर लोग नहीं देखा, ब्रदर्स लोग नहीं देखा, आज चलने दो, है ना? हम अन्य भाषा old, we have got this old अन्य भाषा, we can keep and we can roll the ears not. God cannot do anything through you, my dear brother and sister. जो पहले अन्य भाषा को हमने प्राप्त किया उसी को हम बोलते रहने से साल बीतते जाएगा, लेकिन प्रिय भाई प्रिय बहन परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा. Repentance, the womb of the revival. मन फिराव वही हमारे बेदारी के लिए एक शुरुआत है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति The हो. first point is confess openly and fully any unconfessed sin. इसलिए पहला विषय है कोई भी इकरार न किया हुआ पाप को खुलेआम और पूरी रीति से इकरार करना चाहिए. Put away from your life anything doubtful. यदि कोई भी संदेह की बात आपके जीवन में होने से उसको दूर करना चाहिए. But how can we understand this point? Are we able to understand? I think you are able to understand first point. अब मुझे लगता है कि आपको पहला विषय Those who are able to समझ में understand आया. the first point, please lift up your hand. जिन लोगों को पहला विषय समझ में आ गया हाथ उठाइए. Who said this point? पहला विषय क्या है? Who? किसने कहा? Huh? Evan Robert. है ना? Wherever he goes, like meeting, he says this point first. जहाँ का इवान रॉबर्ट्स मीटिंग चलाता था इन 4 बातों को पहले बोलता था. Confess your sins. आपके पापों को इकरार करो. Any unconfessed sin in your life. जो इकरार न किए हुए पाप है तो उसको इकरार करो. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. What is second? दूसरा क्या है? Put away
from your life anything which is doubtful. कोई भी संदेह की बात अपने जीवन से दूर करना. How can we understand this thing? कैसे इसको समझ सकते हैं? For example, उदाहरण के लिए if a boy यदि or एक लड़का girl, या लड़का या लड़की है, as you speak and in the Facebook you have got a relationship with some other girl or other boy, यदि आपको फेसबुक में दूसरा कोई लड़के या लड़की के साथ एक संबंध ऐसे ही हो रहा है तो अक्का अन्ना मेरे को मालूम नहीं ये रिलेशनशिप में मैं कंटिन्यू करेगा क्या नहीं, इसमें क्या गलती, हम लोग कुछ गलती नहीं करता, बातें करते रहता, ये चाहिए क्या नहीं है. आप ऐसे आके आपके सेवक से बोलते हैं कि हमको मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि इसमें गलत कुछ गलती है. नहीं है. हमने कुछ गलत बात तो नहीं But you किया, have got a doubt लेकिन आपको एक संदेह है whether I have to forsake it or not. मुझे इसको छोड़ना है कि या उसको और I- लगातार करना है. If you have got a doubt like that, यदि आपके अंदर ऐसे एक संदेह आने से doubt को निकाल दो. You keep it away from. I don't want. आप उसको दूर ही रखना, मुझे वो नहीं चाहिए बोल देना. No doubt. Clear it. What should I don't? Doubt का subject नहीं लेना चाहिए. संदेह आने से उसको दूर कर देना Praise be चाहिए. to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Put away anything in your life, anything doubtful. आपके जीवन में यदि कोई भी संदेह की बात है तो उसको दूर करना चाहिए. Third, तीसरा, obey promptly anything that Holy Spirit tells to you and to tell you to say and do. जो कुछ पवित्र आत्मा तुम्हें कहने और करने के लिए कहता है उसे फुर्ती से पालन करना. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Early morning, get up by 4 o'clock. सुबह 4 बजे उठो. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. The Spirit will say whispers in our hand. पवित्र आत्मा ऐसे हमारे कान में फुसफुसाएगा. Cephas says in the morning, all the young boys and came for the morning praising. सीफस ब्रदर ने सुबह कहा कि सारे जवान बच्चों सुबह की स्तुति प्रार्थना में आए थे. I was glad to hear that. मुझे सुनने बहुत खुशी हो गई थी. God says, परमेश्वर कहता है, because of the leaders here and the volunteers compelled and dragged you, I think so. I don't know. मुझे लगता है कि इधर जो सेवक और वॉलंटियर्स आके आपको खींच कर लेकर आए होंगे, पता नहीं. So there's a whisper in your heart. जब आपके हृदय में ऐसे एक फुसफुसाने की आवाज आने Go से to the meeting. मीटिंग में जाना चाहिए. Pray. प्रार्थना करना Read the चाहिए. Bible. बाइबल पढ़ना So that चाहिए. He wanted to give a verse for you because of that problem. इसलिए उस प्रॉब्लम के कारण हमको एक वचन देने को चाहते हैं. God urges and whispers something in our heart. परमेश्वर आपके हृदय में ऐसा कुछ फुसफुसाएगा. So we should obey तब हम आज्ञा मानना what He चाहिए. says. वो क्या कहता है? No. What He says we have to obey. जो परमेश्वर कहता है उसको आज्ञा मानना And we have to चाहिए. do. उसको करना भी चाहिए. Sometimes we never obey when we will delay and we do it. कभी कभी हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो कुछ देर के बाद उसको करेंगे. So revival to really take place in us, यदि हमारे अंदर सचमुच बेदारी आना है तो and we have to obey the what the Spirit of God urges in our heart. जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रेरणा देता है उसको हम जरूर उसका आज्ञा मानना चाहिए. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And confess Christ openly. और हम खुलेआम मसीह का इकरार करना What is चाहिए. this meaning? इसका अर्थ क्या है? If you go to your college, यदि आपके कॉलेज में जाने से it is shy to shame to say I'm a Pentecostal girl. मैं एक पेंटिकोस्टल विश्वासी हूँ ऐसा बोलने के लिए आपको बहुत ही शर्मिंदा होता Other होगा. girls are come beautifully with the ornament and everything. बाकी लोग बहुत गहने से पहन के बहुत सुंदर तरीके से आते होंगे. All kind of jeans and topless and sideless, all the hopeless dresses. सब प्रकार के आधे अधूरे कपड़े जीन्स सब पहन के आते होंगे. So in that junction, humbly with the simple dress to go, sometimes we don't like to express who we are. उन लोगों के बीच में हम अपने साधारण वस्त्रों में जाके कभी कभी हम कौन है करके उनके बीच में बोलने के लिए हमको शर्म आता है. But what we have to do, लेकिन हम क्या करना in चाहिए? any situation, किसी भी अवस्था में like Daniel, दानियल के समान, Shadrach and Abednego, शाद्रक अबेदनेगो के समान how many children had gone? कितने लोग गए थे? How many young people had Nebuchadnezzar captivated, take the children there? नबूकदनेस्सर ने कितने बच्चों को बाबुल देश में बंदी होके लेके गया था? How many youths? बहुत सारे जवान. But you know, for the truth, they stood for, they openly confess, we want worship this statue. लेकिन बहुत ही हिम्मत के साथ उन्होंने खुलेआम ऐसा इकरार किया कि हम इस मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे. Whether my God will deliver me, हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाएगा. even though He is not deliver, नहीं छुड़ाने से भी we want worship. हम आराधना नहीं करेंगे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Hallelujah. That's the reason. इसके कारण In the fire, उस आग के भीतर the fourth person, Jesus was walking with them. एक चौथा पुरुष यीशु मसीह भी उनके साथ साथ चल रहा था. Yeah, in your college, there will be a big problem for you. आपके कॉलेज में आपके लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है. But don't fear, we are coming to the last
We are coming in the last days. लेकिन अब डरना नहीं, हम अंतिम दिनों में आप पहुंचे हैं. In your college, like Ivan Robert, God is going to do miracles through you. आपके कॉलेज में इवन रॉबर्ट्स के समान परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम को करेगा. Those who believe, say hallelujah, boys and girls. जो विश्वास करते हैं हालेलुया बोलिए. मेरे द्वारा परमेश्वर बढ़ाका. Hallelujah. The devils in the Nagpur have fallen. नागपुर देश के सारे शैतान गिर गए हैं. We may be weak, don't fear. हम कमजोर हो सकते हैं, डरना नहीं. But the decision that you make going to give an anointing stand for. लेकिन जो फैसला आप करते हैं आपको खड़े रहने के लिए एक अभिषेक देगा. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Now I got a time to give the pastor also the time. अभी मेरा समय समाप्त हो गया है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. The Wales explain. I'll explain the Wales. The past revival that going to take place. वेल्स देश में उसके No. We got a little. I got a little space. थोड़ा ही समय है. So 11:15 pastor given a 15. पास्टर जी ने कहा 11-15 तक. So I quickly go through. जल्दी से बताऊंगा. And the paper will be given to you. फिर आपको वो पेपर दिया जाएगा. Don't write now. अभी उसमें कुछ भी नहीं लिखना. You read it. उसको पढ़िए. In your spare time you can read it. आपकी जब समय मिलता है उसको पढ़ सकते हैं. The passage what you have to write and give to respective brothers and workers. और जहां आपको लिखने के लिए जगह दिया गया है, आप जाने के बाद आप आपके कलीसिया के भाइयों को, सेवक भाइयों को वो देना चाहिए. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Now don't disturb them, please. अभी पेपर नहीं देना. Don't please give, please. अभी कृपया कोई पेपर नहीं बांटना. I know. End of the meeting you give. खत्म होने के बाद दे सकते हैं. You please write it. आप उसमें लिखना. And give to the sisters, young sister give to the worker sisters. बहन लोग आपके सेवक बहनों को दे सकते हैं. And young brothers give to your local brother. और जवान भाई लोग आपके सेवक भाई को दे सकते हैं. The decision what you are going to do. आपने क्या फैसला लिया है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Now we spoke about one revival called Wales revival. अभी हमने वेल्स रिवाइवल के बारे में देखा था. Quickly we'll go through. उसके बारे में जल्दी से देखेंगे. What happened in the Bible history, how the revival took place. भूतकाल में बाइबल इतिहास में कैसा बेदारी हुआ था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. In the first century, पहले शताब्दी में there's a revival took place. एक बेदारी हुआ था. That is called in the first century, in the upper room when the 120 people are anointed with the Holy Spirit. पहली सदी में जब पेंतिकुस्त के दिन में ऊपरी कोठरी में जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर कर आया था. How many people are converted? कितने लोग मन फिराए? Can any girl? क्या कोई बता सकता है? When Peter filled with the Holy Spirit, when he spoke, how many people are converted? जब पतरस आत्मा से भरे हुए उसने भाषण या प्रचार किया तो कितने लोग उधर मन फिराए थे या उद्धार पाए थे? Thank you. God bless you. Only one girl or fully? 3,000. 3,000 लोग. God bless you. परमेश्वर आपका आशीष करे. See, in that first 120 and that Pentecost, that is called the Pentecostal revival. वो जो पहला बेदारी था उसको पेंतिकुस्त का बेदारी कहते हैं. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And then after that, there's a conversion take place in that period for another 5,000. उसके बाद उसी समय में एक और बार ऐसा मन फिरा हुआ था और 5,000 लोगों का उद्धार हुआ था. They gone and tarried, obeying the word of the Jesus in the upper room for and the 120 upon 120 people the fire came down. उन्होंने यीशु मसीह के वचनों को मानते हुए उस ऊपरी कोठरी में जाके उन्होंने 10 दिन तक बाट जोया और 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And 1 to 6 15th century, it is called as a dark century. 1 से लेके 15वां शताब्दी तक उसको एक अंधकारमय शताब्दी कहते हैं. Dark age. एक अंधकारमय युग. There is no revival at all. उन समय में कुछ भी बेदारी नहीं हुआ था. As a dead church. वो एक मरा हुआ कलीसिया की अवस्था था. At the age and at the century 16th century. और जब 16वां सदी आया. There's a man called Martin Luther. मार्टिन लूथर करके एक मनुष्य था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And through him God did a revival work. उनके द्वारा परमेश्वर ने एक बेदारी का काम किया था. It's called Protestant Reformation. उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट सुधार.
Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Protestant, Martin Luther. मार्टिन लूथर At प्रोटेस्टेंट the थे। time the orthodoxism of Roman Catholics were prevailing. उस समय रोमन कैथोलिक कलीसिया के ऑर्थोडॉक्स Going on. रीति चलता सब था। चल रहा था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। But this man read the Bible. लेकिन ये मनुष्य है बाइबल पढ़ के, According to this Bible, what you are doing is wrong. बाइबल के अनुसार उसने कहा कि आप जो करते हैं वो सब गलत He है। printed the Bible verses and knocked into the doors of the RC churches. बाइबल के वचन में जो जो लिखा है वो सब लेते हुए रोमन कैथोलिक के कलीसिया में वो जाके खटखटाता था। This is called the Great Awakening. Awakening. इसको एक बहुत बड़ा जागृति कहा गया। And a second awakening also happened in that period. और उसी समय में एक दूसरा जागृति भी हुआ। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। And third, तीसरा, in 1830, सन 1830 में it's called a general awakening. उसको एक आम या सामान्य जागृति कहा गया है। That is called the Holy Spirit began to fall upon the church. उस समय पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर कर आया। Praise be to God. Now after that, nothing. उसके बाद कुछ नहीं हुआ। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। In the 1901, और सन 1901 में, 1901 से 1910, सन 1901 से सन 1910 तक it is called a revival decade. उसको कहते हैं बेदारी का समय। And under 10 years, it's called as a decade, no? 10 साल ऐसा हुआ था। Praise be to God. परमेश्वर की One स्तुति हो। decade is a 10 years. एक डिकेड बोलने से 10 साल है। So this is called the revival decade. इसको एक बेदारी का समय कहा गया है। At that period only, the Wales revival took place. उस समय में ही वेल्स देश में बेदारी हुआ था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। We saw who's the root cause for that Wales revival. हमने देखा कि ये वेल्स की बेदारी के लिए कौन जड़ कारण था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, is Evan Robert, not only particularly that man, but many young people and girls and boys get together and pray. They bought that Wales revival. केवल इवन रॉबर्ट्स ही नहीं, बहुत सारे जवान लड़के लड़की भी इकट्ठा होके प्रार्थना करके उस बेदारी का कारण बने। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Why quickly see what has happened, the consequences of the Wales revival. जल्दी से देखेंगे कि वेल्स देश में जो बेदारी हुआ उसका परिणाम क्या था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। You please understand this quickly. इसको जल्दी से समझ लेना What चाहिए। happened after the Wales revival? वेल्स बेदारी के बाद क्या हुआ? It is not happened in one church, केवल एक कलीसिया में नहीं in हुआ, the society. समाज में It affected the whole country. The lifestyle is changed. पूरे देश में फैल गया, उनका जीवन शैली बदल गई। Before that, the people are full of drunkard people. उसके पहले लोग सब शराबी थे। Nightclub, they have the nightclub. नाइट क्लब में जाते थे। Din and on a day and night they used to drink sins. रात और दिन पाप को ऐसे पीते थे। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। But now the Holy Spirit began to convict the people. लेकिन अभी पवित्र आत्मा लोगों के अंदर एक बोध को लाया। Not when the people, young people are playing in the playground. जब जवान लोग मैदान में खेलते थे, The revival and the Holy Spirit touches them and they fall down and kneel down and cry for the repentance. पवित्र आत्मा उनको छूता था और वो लोग नीचे गिर पड़ते थे, रोते थे और मन फिराते थे। And the meeting will go so long hours. और बहुत लंबे लंबे समय तक एक एक सभा चलती थी। देखो, now we have to finish by 12 o'clock or 1 o'clock. अभी हमको 12-1 बजे समाप्त करना है। Because we have got lunch. अभी हमको भोजन करना After है। that you will give the rest. फिर उसके बाद आप विश्राम करेंगे। But in the Wales revival not so. लेकिन वेल्स बेदारी में ऐसा नहीं था। No timing, no bell. कुछ समय नहीं था, कुछ घंटी नहीं All थी। filling the Spirit, keep on filling, madly they fill. सब लोग पागल के समय आत्मा में भरते ही जाते थे। One of the sisters who came for the serve God. एक बहन जो सेवा करने के लिए आई, उसके testimony क्या मालूम है? उनका गवाही क्या मालूम? है ना? He cried to God. उन्होंने परमेश्वर से ऐसा रोया। She was toxicated with the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम के नशे में थी। When they first time touched by the Holy Spirit, जब पहली बार पवित्र आत्मा ने उसको स्पर्श किया, Lord, it is enough, O Lord. प्रभु जी ये बस है। My heart is as if it was blasting. Stop it. मेरा हृदय फट जाएगा, प्रभु जी इसको बंद कर। So ऐसा एक सीमा है। ऐसा भी एक अनुभव है। Immeasurable. God had anointed Jesus with the immeasurable. परमेश्वर ने यीशु को एक असीमित अनुग्रह से अभिषेक किया था। I'm encouraging you. मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ। Hallelujah. मेरे को भी ऐसा एक अभिषेक चाहिए। ये रिवाइवल मीटिंग में बोलने वाला लोग हाथ ऊंचा करो। Like that sister. I want a anointing. उस बहन के जैसा मुझे भी एक अभिषेक चाहिए। Full and. I should become a man for God.
पूरा पूरा अभिषेक में परमेश्वर के लिए पागल बन जाना चाहिए. And we'll be, and in Jeremiah there's a verse. यिर्मयाह में एक वचन है. We and by the new wine we have become like a mad. नए दाखमधु के द्वारा हम पागल के समान बन गए हैं. This is what happened in the first century. पहले शताब्दी में ऐसे ही हुआ था. This is what happened in the Wales revival. यही वेल्स के बेदारी में भी हुआ था. When the Wales revival is going on, जब वेल्स की बेदारी हो रही थी, when the revival meeting, I saw meeting this kind of meeting was going on. ऐसा एक सभा चल रही थी. One girl, एक लड़की so fearful, बहुत ही डर डर के with the pastor's permission came near. पादरी की अनुमति से वो सामने आई. Pastor, I have to give a testimony. पास्टर जी मुझे एक गवाही देना है. The lips are shivering. उसके होंठ ऐसे कांप She रहे couldn't थे. do anything. कुछ भी नहीं कर पाई. क्या बोला? What she said? No. उसने क्या कहा मालूम है? I got a testimony. मुझे एक गवाही है. I love Jesus with the whole of my heart. मैं यीशु को मेरे पूरे हृदय से प्रेम करती हूँ. She told this testimony and gone and sat there. गवाही बोलकर जाके बैठ गई. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. You know? क्या आप जानते हैं? Maybe 500-600 young people were there. लगभग उधर 500-600 जवान बच्चे थे. Pastor never spoke any word. पादरी ने कुछ भी बात नहीं The कहा. fire came from heaven. आकाश से ऐसे एक स्वर्ग उतर कर आया. The heaven came, the fire, the holy fire came. पवित्र आग उतर के आया. Calvary love filled the heart. कलवरी का प्रेम उनके हृदय They को भर दिया. all intoxicated with the love of God. सभी जवान बच्चे परमेश्वर के प्रेम के नशे में आ गए. Pastor couldn't stop the meeting. People are in the fire. और वो जो पादरी था, लोगों उस सभा को समाप्त नहीं कर पाया. सारे लोग के अंदर आग पकड़ गई. Such a revival took place in that Wales revival. ऐसा एक बेदारी वेल्स की बेदारी में हुआ था. And 22 lakhs people were accepted in UK. 22 लाख लोग यूके देश में उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. The cutting and the murderers and the gang leaders, they are converted. हथियारे और गैंग लीडर्स ऐसे बहुत ही भयानक लोग भी मन फिराने लगे. In Wales, the football and the rugby is the international. They are the rugby players. Rugby. वेल्स देश में फुटबॉल खेलना, रग्बी खेलना, वो उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध खेल था. There will be big audience for them. उनके लिए बहुत बड़ा भीड़ था. But when the revival meeting started, लेकिन जब बेदारी का सभा शुरू हो गया, what happened? There's less people goes to the auditorium. बहुत ही कम लोग उस खेल को देखने के लिए जाते थे. And the revival meetings are filled. और सारे रिवाइवल मीटिंग की जगह में लोग भर गए. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And the players are astonishing. Why the people are not coming? जो खिलाड़ी थे बहुत ही हैरान हो गए, लोग क्यों नहीं आ रहे? इतना लोग आता था देखने के लिए. इतना लोग देखने के लिए आते थे. अभी नहीं, ये क्या हो गया? अभी कोई नहीं आता, क्या हो गया? Hey, so there a revival meeting happened in Wales. क्योंकि वेल्स में एक बेदारी का सभा हो रहा है. So what is happening? We will also go and watch that revival. तो क्या हो रहा है? हम भी जाके देखेंगे उधर क्या हो रहा है. Players gone for the meeting. खिलाड़ी भी उधर मीटिंग में गए. Holy Spirit fall upon them also. पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतर कर आ गया. They become the preachers. और वे भी प्रचारक बन गए. Through them they become the musicians and the preachers of the gospel. और वे लोग भी सुसमाचार के प्रचारक और संगीतकारों के बन गए. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन. Those who are people not connected, they are touched by the Holy Spirit. जो लोग इससे कुछ संबंध नहीं रखते, वे लोग भी पवित्र आत्मा के स्पर्श के नीचे आ गए. So sports become less interest there now. इसलिए उन दिनों में खेल कूद बहुत ही कम हो गया था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. All this started by the young people and run by the young people. Remember that thing. ये सारे बातें जवान लोगों के द्वारा शुरू हुआ था, जवान लोगों के द्वारा चलाया गया था. Before that, Bible stores were open. There nobody to buy the Bibles. उसके पहले जो भी बाइबल को बिकते थे, कोई भी बाइबल खरीदने के लिए नहीं आता थे. Now what is the board in the Bible shop? अभी बाइबल की दुकान में क्या बोर्ड लगाया था? Sorry, there is no stock. अभी कुछ स्टॉक नहीं है. They go for the wine shop. वे दारू पीने के लिए दुकान में जाते थे. They ordered for the wine bottle. शराब की बोतल खरीदने के लिए. They pay for it. उसके लिए पैसा देते थे. The Holy Spirit come and deal with them. पवित्र आत्मा के उनसे बर्ताव करता था. They won't buy the wine, they fall in the street and they fill in the Holy Spirit. उस शराब की बोतल को नहीं खरीदते थे, उधर ही वो सड़क पर गिर के आत्मा में भरना शुरू करते थे. This was the revival. It's not only church, in the street, in the nation, in the political level. There is no case also. ऐसा एक बेदारी हुआ केवल कलीसिया में नहीं, सड़कों में, घरों में, सभी जगह राजनीतिक लोगों के बीच में भी ऐसा हो गया. And for the judges there is no work. और जो न्यायी लोग थे उनके लिए कुछ काम ही नहीं था. The judges put the white clouds and lift up their hand. सब सारे न्यायी लोग अपने हाथ में सफेद ग्लव्स को पहनते थे, हाथों को उठाते थे. When the judges put the white gloves, when
ये न्यायी लोग कब ऐसा सफेद ग्लव्स When पहनते there is थे? no criminal act, there is no court case in the जब court. कोई भी अपराधी का कुछ भी मामला कोर्ट में नहीं आने से, They always put the white coats. Today there is no case. आज कुछ भी मामला नहीं है, अदालत में कुछ भी काम नहीं है करके हाथों में ऐसा व्हाइट ग्लव्स पहनते थे. And the bank, the loan they got it, and they're not given the money. They restitute given the money for the bank. और जिन लोगों ने बैंक में से लोन लिया था वापस उसको नहीं लौटाया था, वे लोग भी सारे पैसों को लौटा देते थे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति And हो. another important thing happened. It is very jockey. और एक बहुत ही मुख्य बात हुआ, बहुत ही मजे का बात है. What happened? There is a strike in the coal mines. Strike. कोयले के खदान में एक हड़ताल हो गया था. And a different kind of strike. It is not the management and the labor strike. एक बहुत ही अजीब प्रकार का एक हड़ताल था. उधर के मैनेजर और मजदूरों के बीच में नहीं था. Not with the management and the labor. मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में नहीं. But it is with the, what you call, the horses who supposed to carry the coals from the mine to the places. They are not working. They are not moving the vehicle. जो उधर के जो घोड़े थे वे उस कोयले को एक स्थान से उस कोयले के खदान तक पहुंचाते थे. वे घोड़े काम नहीं करते थे. The reason? उसका कारण, the one who runs the Goda, जो उस घोड़े को चलाता था, they all repented and converted. वे सभी लोग मन फिरा के वे लोग उद्धार पाए. They are using the simple language. और वे बहुत ही एक साधारण भाषा बोल रहे हैं. जा. The Godas, the horses not able to understand this new unknown tongue. ये जो अन्य भाषाएं बात कर रहे हैं, घोड़े को वो समझ में नहीं आ रहा था. Because before that, क्योंकि उससे पहले those who ride this vehicle, जो इस घोड़े के ऊपर सवार करते थे, they use, because they're drunkard and they are hard workers, they drink and they use the foul languages. वे लोग मजदूर थे, बहुत ही कठिन काम करते थे, इसलिए शराब पीते थे, बहुत ही गंदी. They use with the stick. और वे उस चाबुक से उसको मारते थे. Beat with the sticks. उस घोड़े को use the bad words. लकड़ी से मारते थे, बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करते थे. But when the Holy Spirit come upon them, लेकिन जब पवित्रता उनके ऊपर आ गया, the darkness gone, उनका अंधकार चला गया, there comes a soft language. बहुत ही एक कोमल भाषा को इस्तेमाल करने लगे. Which the horses couldn't understand. और उस घोड़े को वो समझ में नहीं आ पाया. So they couldn't work. इसलिए घोड़े काम करना बंद कर दिए. This kind of strike gone there. ऐसे एक हड़ताल उधर आ गया. See the revival. देखिए बेदारी को. 2 lakh people are touched. 2 लाख लोग उसमें स्पर्श हुए. The whole land was revived. पूरे देश बेदार हो गया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And another this thing, एक और जगह में revival took place because of this thing. इस बेदारी के द्वारा उधर भी बेदारी When हुआ the American people saw something happen in the Wales, जब अमेरिका के लोग ने देखा कि वेल्स में कुछ हुआ था. So Wales is a place in England. वेल्स कहने से इंग्लैंड देश का एक राज्य है. UK, it is a combined of 4 countries. यूके में 4 राज्यों का मिलावट है. Scotland, Ireland, the Wales, and put together it is called as UK, United Kingdom. स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये सारे देशों को मिलके ही उसको यूके कहते हैं. So it is UK, America is separate. और अमेरिका अलग है, यूके अलग है. That is also Christian country. वो भी एक मसीही देश है. That is also fallen condition at that time. और उधर भी ऐसे एक गिरा हुआ अवस्था था. Some pastors gone to the Wales revival. कुछ पादरी उधर से वेल्स के रिवाइवल में गए थे. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And brought their revival message to their churches. और वो जो बेदारी का संदेश है अपनी कलीसिया में लेकर आए. When they preached, after going and filled in the Holy Spirit, they come and preached. उधर जाके आत्मा में भरने के बाद इधर आके उन्होंने प्रचार किया. And there's a great revival in the churches. और कलीसिया में बहुत बड़ा बेदारी होना शुरू किया. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And the same, that is a man called Frank Brittleman. फ्रैंक ब्रिटलमैन करके एक मनुष्य था. He is a member of the Baptist church. वो बैप्टिस्ट चर्च का सदस्य था. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And another man called William Seymour. और एक और जनता विलियम साइमोर. These people have gone to Wales, and that message of that revival brought a revival in their church. ये लोग सब वेल्स देश में गए थे. उधर के बेदारी का संदेश को इधर लेकर आके अपनी कलीसिया में बेदारी को शुरू किया. That one man's name is William Seymour. उसमें एक मनुष्य है विलियम साइमोर. So he came there and conducted the meeting. उधर आके उन्होंने सभा चलाया. This is what we saw in England. हमने इंग्लैंड में यही बात को देखा. This is what happened in Wales. वेल्स में यही बात हुआ. They insisted the people to speak in the unknown tongue. उन्हें लोगों को अन्य भाषा में बात
बात करने के लिए उनको उत्साह You feel in the spirit speaking in an unknown tongue. आत्मा में भरो, अन्य भाषा में बात करो. But Orthodox church member of that church, लेकिन उस कलीसिया में रहने वाला एक ऑर्थोडॉक्स सदस्य था. they said you have to eliminate from the church. उन्होंने कहा कि आप चर्च से बाहर जाना है. Rejected him as a pastor and he was thrown out. उनको पादरी से पदवी से निकाल के उनके कलीसिया से बाहर डाल दिया So था. what this man did, you know? तो इस व्यक्ति ने क्या किया? William Seymour ने So in the road he used to conduct the meeting. सड़क में ही उन्होंने सभा चलाना शुरू किया. And there is an old building. उधर एक पुराना एक इमारत थी. It's an old church building. बहुत ही पुराना. Nobody used it. एक कलीसिया का एक इमारत. The floor, wall and everything full fit is damaged. उधर कोई भी नहीं रहता था. सारे दीवार सब बिगड़ गए थे. उधर का मंच सब कुछ टूट गया था. He cleansed that building and conducted the meeting over there. उन्होंने उस इमारत को पूरा साफ सफाई किया और सभा चलाया. The whole meeting was filled with people. पूरी सभा लोगों से भर गया. And people are standing outside also. और लोग बाहर भी खड़े होने शुरू किए. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Big revival in the streets. सड़कों में बहुत बड़ा बेदारी हो गया. That is called Azusa revival. उसको कहते हैं अज़ूसा रिवाइवल. In America, अमेरिका में one street name is Azusa. एक सड़क का नाम है असूसा. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. And William Seymour conducted that meeting. That's a great revival. और विलियम साइमन ने उधर सभा चलाया. उधर बहुत बड़ा बेदारी हो गया. The Holy Spirit fall and the people began to speak in unknown tongue. पवित्र आत्मा आने लगा. लोग सब अन्य भाषा से बोलना शुरू किया. Creative miracles happened over there. बहुत बड़े अद्भुत चमत्कार काम होने शुरू किए. Those doesn't have the leg will come. The pastor will pray and the legs come. जिनको पैर नहीं था वे लोग आते थे. पादरी प्रार्थना करने के बाद उनको पैर आ जाता था. Cancer will be healed. कैंसर चंगा हो जाता था. And the people from other continent and the nation will come. दूसरे देशों से, दूसरे जातियों से लोग आते थे. In this way, Azusa revival was a great in the church history. इस प्रकार कलीसिया के इतिहास में अज़ूसा बेदारी बहुत बड़ा बेदारी हो गया. It all happened in the Spirit of God. ये सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ. Are you now you are believing? अब क्या अभी विश्वास करते हैं? So now is the question, brother. You are speaking about England. अभी आप बोलते हैं ब्रदर जी आप तो इंग्लैंड के बारे में बोल रहे हैं. You are speaking about the USA. आप यूएसए के बारे में बोल रहे हैं. What is happened in India, brother? ब्रदर जी भारत में क्या हो रहा है? It is the same year in the 19th century. उसी साल जब 19वीं शताब्दी में. In the 1904, 1906. सन 1904, 1906 में. Our Pastor Paul was doing the ministry in Sri Lanka. हमारे कलीसिया के पास्टर पॉल श्रीलंका में सेवा कर रहे थे. He went to one Australian ministers conducting meeting. He called him and sat on this meeting. 16 were anointed. वे उस एक सभा में गए जहां ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कुछ प्रचारक लोग वे लोग सभा चला रहे थे. उस सभा में बैठा और 16 लोग अभिषेक पाए. You know who is the founder of our mission? Can you say? क्या आप जानते कि हमारे मिशन के संस्थापक कौन है? हमारे Hallelujah. Who is the founder of our mission? हमारे कलीसिया के संस्थापक कौन है? जोर से बोलो. Paul at that time only was received the Holy Spirit when the Wales revival is going on. जब वेल्स में बेदारी हो रहा था तभी हमारे पास्टर पॉल Wales revival was spreading throughout the world. वेल्स की बेदारी पूरे संसार में फैल रही थी. At that time only he was anointed in Sri Lanka. उसी समय में श्रीलंका में हमारे पास्टर पॉल ने भी अभिषेक पाया था. And that is the reason now this year is 100 year for our missionary. अभी हमारा कलीसिया शुरू होके 100 साल हो गया. Now once back there is going to be big revival. अभी एक और बार एक बहुत बड़ा बेदारी होने वाला है. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. How many of you are going to believe now? Please kneel down 1 minute. आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? 1 मिनट के लिए अभी घुटने टेकिए. Before I will call the pastor. हमारे पास्टर को बुलाने से पहले shall you all kneel down 1 minute? 1 मिनट सभी लोग घुटने टेकिए. As the fire burned in the heart of Evan Robert. जिस प्रकार इवन रॉबर्ट्स के हृदय में आग जल रही थी. How the heart burned in the Simon Moore. जिस प्रकार साइमोर के अंदर ये आग जल रही थी. And that brought a great revival in their country. और उसके कारण पूरे देश में बहुत बड़ा बेदारी हो गया था. God wanted to put a fire in your heart. परमेश्वर चाहता कि आपके हृदय में भी एक आग को डाले. Now as if it is nothing is happening. अभी लगता है कुछ भी नहीं हुआ है. But there is fire is going to come, believe. लेकिन अब विश्वास कीजिए कि आग उतर कर आने वाला है. I asked one sister, I'm not studied brother, how can I come for the ministry? मैंने एक बहन से बात की. उन्होंने कहा ब्रदर जी मैं उतने पढ़ाई नहीं किया, मैं कैसे सेवा में आ सकती हूँ? Even Robert is
dropped out. He's never school study also. He never completed. इवेन रॉबर्ट्स बचपन से ही स्कूल की पढ़ाई को छोड़ दिया. He never need your strength and your qualification. आपकी जैसी क्वालिफिकेशन इवेन रॉबर्ट्स को नहीं था. No. God doesn't need. अब परमेश्वर को आपका योग्यता, आपका क्वालिफिकेशन की जरूरी नहीं है. Your studies, your qualification is not necessary. आपकी पढ़ाई, आपकी क्वालिफिकेशन परमेश्वर को जरूरी नहीं है. Now even Robert become a study for the many people now. अभी इवेन रॉबर्ट्स बहुत सारे लोगों के लिए एक पढ़ाई का विषय हो गया. अनपढ़ है. वो अनपढ़ है. Now he become because the God used him mightily. लेकिन परमेश्वर उसको सामर्थ से उपयोग करने के कारण. You can just lift up your hand now. हाथों को उठाइए. And God is going to use. Believe. अब विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने वाला like है. Ivan रॉबर्ट्स के समान. In Maharashtra, you know, when the revival, who brought the revival in Maharashtra first? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले महाराष्ट्र देश में कौन बेदारी लेकर आया था? We are in Maharashtra. हम महाराष्ट्र में हैं. Who brought the revival? Any girl? कोई बोल सकता है कौन बेदारी लेकर आया था? Pandit Ramabai in Pune. पंडित रामाबाई पुणे में. While you attend the meeting, Holy Spirit was there. जब वो सभा चलाती थी, पवित्र आत्मा उतर कर आया. When it continued for so many months and years. बहुत सारे महीने, बहुत सारे सालों तक ऐसे ही लगातार जारी था. We are in Maharashtra. हम भी महाराष्ट्र में हैं. I think I built so many Pandit Rama either. मैं इधर बहुत सारे पंडित रामाबाई को देखता हूँ. I believe more than Pandit Ramabai, God is going to use. मैं विश्वास करता हूँ कि पंडिता रामाबाई के से अधिक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. So many Ivan Roberts were here. बहुत सारे इवेन रॉबर्ट्स इधर बैठे हैं. You believe आप through विश्वास me. कीजिए. How the Ivan Robert prayed, you know? क्या आप जानते हैं इवेन रॉबर्ट्स ने कैसे प्रार्थना Bend किया? below. हे प्रभु मुझे मोड़ दे. Bend below. प्रभु जी मुझे मोड़ दे. Turn below. प्रभु जी मुझे The मोड़ fire दे. came upon. और उसके ऊपर आग उतर कर आया. Shall you all sing that song? अब You हम सब believe लोग it? उस गीत को गाएंगे. However you are weak. आप कमजोर हो सकते हैं. However you are backslidden. आप पीछे हटे हुए हो सकते One हैं. touch of the fire can change you. लेकिन उस आग एक स्पर्श आपको बदल सकता है. Let you all sing that Agni Saman. Uttar. सभी लोग उस कोरस को गाएंगे. Everybody, all girls and sisters. सारे भाई बहनों उसको गीत को गाएंगे. You believe and sing the आप song. विश्वास करके उस गीत को गाएंगे. मेरा life like a सूखी हड्डी का जैसा. प्रभु जी मेरा जीवन सूखी हड्डी के समान है. Lord, what can do? You know, in the dry bone, उस एक सूखी हड्डी में there is no nerve. कुछ भी नस या नाड़ी नहीं है. There is no muscle. उसमें There is मांसपेशी no नहीं life है. at all. उसमें जीवन नहीं है. What God said, you know? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? He breathed upon. तो उसके ऊपर फूक. Breathed upon. तो उसके ऊपर In the valley. उस तराई में, In the Nagpur. नागपुर In the में, revival meeting. इस बेदारी की सभा Like में Lord, my life is like a bone, oh Lord. बोलो प्रभु जी मेरा जीवन एक सूखी हड्डी के समान है. Lord, breathe upon me, Lord. प्रभु जी मेरे ऊपर तू फूको. Jesus breathed upon the disciple. यीशु ने अपने शैलों के ऊपर फूका. They are also hopeless, meaningless, and your black accident. वे भी आशा रही थे, उनके अंदर कुछ भी दाम नहीं था. Jesus मर गया. लेकिन यीशु मर गया. We will going back to the fishing. हम मछली पकड़ने के लिए जाएंगे. कुछ भी नहीं है. No hopeless state. कुछ भी आशा नहीं है. God breathed upon. लेकिन परमेश्वर के ऊपर फूका. God breathed upon. परमेश्वर ने फूका. Go and wait in Jerusalem. जाके यरूशलेम में बाट जो ना Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर गए. Now the same word is there. अभी वही परमेश्वर कहता है. Those who came to Nagpur, you are sanctified them. जो लोग नागपुर सेंटर में आए हैं, God is going to breathe upon. परमेश्वर आपके ऊपर फूकने वाला है. How many of you believe you? कितने लोग विश्वास करते Shall you all clap your hand? The mighty hand of God is here. हम सभी लोग ताली बजाएंगे. परमेश्वर का बलवंत हाथ हमारे I बीच could में feel है. the fiery hand of God here. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का एक अग्नि Hallelujah. अग्नि समान तेरा Amen. अपनी जीभ की समान ठहर जा जो का तूफान काली किया नदी आंखों की हम पर बहा अग्नि समान तेरा अपनी जीभ की समान ठहर जा जो का तूफान काली किया नदी आंखों की हम पर बहा
bala katina tina tinaria la bauchagana bala. Hallelujah, 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 hallelujah. थोड़ी देर खड़े हो जाइए. For some time stand up. बहुत थक गए. You're very much tired. धूप जबरदस्त है. It's very hot. कुछ लोगों को नींद आ रहा है. Some people are feeling sleepy. कुछ लोग मुर्गी के जैसा पैर लंबा करके बैठ रहा है. Some are sitting, they're stretching out their legs like an idol. लड़का लोग बाल को ऐसा कर रहा है. And the boys are doing their hair like this. अभी हमको थोड़ा सा ही समय, We have only little time left. गुजरा हुआ जो बेदारी से बढ़कर और एक बेदारी हमारे लिए है. There is a revival much more greater than the past revival. उसके लिए हम हमारे मुंह से कबूल करना चाहिए. For that we must confess through our mouth. कबूल में बहुत बड़ा शक्ति है. By confession there is a great power. आप कबूल करना चाहिए कि मैं इधर से जाने से पहले मैं बहुत बड़ा एक शक्ति को बेदारी को पाके लौटूंगा. You must confess that before I leave this place, I will receive a great revival, a great power. दाऊद का सामने बड़ा गोलियत खड़ा था. There was a great Goliath standing before David. दाऊद छोटा सा लड़का था. David was a small boy. लेकिन दाऊद क्या बोलता? But do you know what David says? परमेश्वर का शक्ति के द्वारा मैं तुमको जानवर के लिए भोजन करके दे दूंगा. Through the power of God, I will give you as a prey for the beasts. हमारा शत्रु को हम सवाल करने का दिन है आज. This is the day of a challenge to the devil. बहुत दिन शत्रु हमें डरा चुका है. For a long time, Satan has been defeating us. आप लोग कुत्ते लोग लड़ते समय देखा कभी? Have you ever seen dogs fighting? दोनों साइड में रहने वाला कुत्ता अपना पैर को खींचता है. Both the dogs, they will stretch their legs. सांड लड़ते समय सांड भी अपना पैर से धूली को पीछे फेंकता है. Even when a bull it is fighting, it will just push its leg. हमारा behind. लड़ाई इंसान से नहीं है. Our fight is not with man. हमारा लड़ाई दुष्टात्मा सेना के साथ है. Our fight is with the wicked spirits. कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिए. Those who believe shout in hallelujah. ये काफी नहीं है. This is not enough. ऐसा आवाज आना चाहिए जो बादल गरजता. Your voice must be like the thunder. और एक बार हालेलुया बोलिए. Once my और एक बार बोलिए. और एक बार बोलिए. मुझे शक्ति देता है यीशु प्रभु जो उसके द्वारा मैं सकता हूँ. मुझे शक्ति देता है यीशु प्रभु जो उसके द्वारा मैं सब सकता हूँ. दरिद्र दीना जो गिदियो उसे महान बनाया था. दरिद्र दीना जो उसे महान बनाया था. मैं भी छोटा बच्चा हूँ मुझे भी. यस मैं भी छोटी बच्ची भी मुझे भी तो महान बना सकता है. मैं जानता हूँ तो महान बना सकता है. मैं जानता हूँ. ओ दरिद्र और दीनता जो गिदियो उसे महान बनाया था. ताली बजा के जो छोटी बच्ची हूँ मुझे भी वो महान बना सकता है. मैं जानता हूँ वो महान बना सकता है. मैं जानता हूँ. शबाला बखला बखला बलकतरा शबाला बखर तिरा शरा तिरा 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 याला बखला तिरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. और 3 हालेलुया जोर से बोलिए. Shout 3 hallelujah. हालेलुया हालेलुया.